to Let's Curious and Grow today with a new topic. And today's topic is regarding cell movement and cell death. So let's begin with it. Video will going to cover the introduction about cell movement and cell death, then the types of cell movement, introduction about cell death, and the types of cell death. Cell movement in their biology involve the processes like cytokinesis means cell division, the rearrangement of cell, migration, addition to form tissues and organs. So ये एक तरह के मैकेनिकल फोर्सेस हैं जिन्हें काम करने के लिए एक्टिन बेस्ड फिलामेंट्स पे काम करना पड़ता है, जिन्हें साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिविजन्स करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और सेल्स की मूवमेंट होती है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के लिए हमें माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज माइटोटिक स्पिंडल्स। डेवलपमेंट जैसे ही शुरू होती है सो सेल्स विल माइग्रेट, दे विल डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट होके डिवाइड होके वो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जाइगोट से, और फिर एक प्रोग्राम्ड सीरीज में सेल्स की अरेंजमेंट चेंज होती रहती है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सेल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्ड इन सेल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। Different types of cell movements. Number one, ambioid movements. Second, ciliary movements. Third are flagellar movements, and fourth one are the muscular movements. This is the diagrammatic representation how cells mobility will takes place. First step is simulation, then locomotory or inversive rotation, then addition takes place. Then after addition, the cells will contractile, they will tensile their strength. After that, de-addition and tail retraction, and the cell's mortality will takes place and it will continue throughout. नंबर वन इज एम्बियोइड मूवमेंट। एम्बियोइड मूवमेंट वाइट ब्लड सेल्स में होती है और बेसिकली इसका काम होता है सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना, और एक्सटेंड करने के लिए इसका साइटोस्केलेटन और माइक्रोफिलामेंट्स की जो प्रोसेसिंग है वो पार्टिसिपेट करती है। एम्बियोइड मूवमेंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है वाउंड हीलिंग के लिए। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो इम्यून रिस्पॉन्स करता है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। So this is the whole mechanism. Here is plasma gel which is green represented. Here are plasma soul, here is plasma membrane, and here is pseudopodia. With the help of this, the locomotion will take place. After that, retraction and protrusion will take place through the actins and adhesion strikes. Next one is ciliary movement. Ciliary movement is through the presence of cilia present all over the body, like small hair-like structures which will beat either to move or propel fluids over the cell. सेल मूवमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या फिर डर्बिस को क्लियर करने में ट्रैकिया में होती है। नेक्स्ट इज द फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट इज सिमिलर टू द सिलियरी मूवमेंट, what it involves larger, it looks like a whip like appendage जिसे हम flagella बोलते हैं। In flagellar movement you will see here the bundle of flagella in this diagrammatic representation. Then the tumble flagella, which is long tumbling movement, is shown by this. So flagellar movement is important for motility. अगर फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं होगी तो कोई भी सेल की मोटिलिटी नहीं आएगी, मूवमेंट नहीं आएगी। So the gametes germ cells will help in fertilization through this type of flagellar movement. Next is the muscular movement. Muscular movement organisms में कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है और इस तरह से हमारी बॉडी मसल्स को मूव करती है, मूव कर सकती है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले रहता है मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम के बीच में। सो दिस इज द one portion of muscle cells, one sarcomere, then thick filament, thin black line, and thick plain pink line. So here are the Z bands are also present.
which is somewhat deep and a next topic of animal physiology. So we will talk it later in that much deeper section. But for muscular movement, it is well known that the coordinated contraction of muscle is there which allows the body for movement, और ये complex interplay role play करती है, तभी हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है. इज सेल डेथ. सेल डेथ वो होती है जिसमें बॉडी कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन करके रखती है. उसके बाद अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू और सेल्स बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, सो ये दो फॉर्म्स में होता है. एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस को हम सुसाइड या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कह देते हैं. नेक्रोसिस को हम किलिंग या डिके एंड डिस्ट्रक्शन कहते हैं. सो is like phagocyte, that is apoptosis. Autophagy is there to the viable cell, and necrosis is also there. See apoptosis or programmed cell. From this cell death in which suicide program is activated within the cell, which lead to fragmentation of DNA. Then after that, what will happen to the cell? The cytoplasm is shrink. After that, once the cytoplasm gets shrink, membranes will getting changed and a cell death without lysis or damage or to neighboring cells. So this is apoptosis. This process is also represented here through the diagrammatic representation and flowchart. Cells डैमेज करते हैं, पहले बॉडी को ट्रिगर करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं एपोप्टोसिस के. उसके बाद शेल श्रिंक करना शुरू करता है. उसके बाद प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं ताकि वो ब्रेक कर सकें सेलुलर कंपोनेंट्स को जिनके जरिए वो डिवाइड करता है. उसके बाद एंजाइम्स की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, और सेल्स इमीडिएट सिग्नल्स को इमिट करना शुरू करते हैं और वो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करते हैं. मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज करते हैं सेल के पार्ट्स को और बॉडी से उन्हें रिमूव करने की कोशिश करते हैं. सेल्स ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में और वो सेल कंपोनेंट्स और न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और मैक्रोफेजेस का काम है उन सेल पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करके बॉडी से बाहर फेंक देना. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस. नेक्रोसिस को हम सेल स्वेलिंग कहते हैं. जब कोई भी सेल थोड़ा बल्क में थोड़ा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, उस चीज़ को नेक्रोसिस कहते हैं. नेक्रोसिस तब होती है जब मेम्ब्रेन्स टूट जाती हैं और वो एटीपी जो होता है उसमें, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, वो भी कम होने लगती है और उसकी वजह से सेल डैमेज होने लगता है और फिर इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है, बॉडी में फुलावट आ जाती है. सो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इज रैंडम हियर, and in whole areas the tissues get affected so fast. So this is the process of necrosis. In comparison to that, apoptosis is also there. apoptosis में cellular condensation होती है, उसके बाद membranes intact हो जाती हैं, इन्हें एटीपी चाहिए होता है, सेल्स phagocytized हो जाते हैं पर टिश्यू रिएक्शन कोई नहीं होता, डीएनए लैडर लाइक हो जाता है और उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक सिंगल सेल अपेयर हो जाता है जो अफेक्टेड होता है, जो खराब हो जाता है, जिसमें इन्फेक्शन हो गई है. सारे सेल्स को ये इफेक्ट नहीं करता. बट नेक्रोसिस, इन नेक्रोसिस होल एरिया ऑफ टिश्यूज आर गेटिंग अफेक्टेड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. Cell death is also through the three processes. Necrosis हमने स्टडी कर लिया जिसमें सेल्स स्वेल करते हैं, इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन्स की डायलेशन हो जाती है और सेल्स मेम्ब्रेन टूट जाने के कारण पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है. सो दिस इज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शोन बाय द बॉडी. एपोप्टोसिस में सेल्स श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, स्वेल करने की बजाय डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्मेशन होने लगती है. पर एपोप्टोसिस में कोई भी इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलती. सो देयर इज नो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस.
थर्ड प्रोसेस इज ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में ऑटोफैगोसोम्स अपने आप की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं और एटीजी प्रोटीन्स को ज़्यादा फॉर्म करने लगते हैं। एटीजी प्रोटीन्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने लगती है, बट ऑटोफैगी में भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। देयर इज नो information regarding cell death and cell movement, and hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। If you have any question regarding this topic, you can ask me through the comment section. I will answer your all questions. So thank you so much. Stay tuned with Let's Go, and we will meet again with a new topic very soon. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.